What is a palindrome number? A palindrome number is a number that is same from forward and backward both. ठीक है, जैसे कि 343, this is a palindrome because if I reverse this number it's the same only 343, but 342, this is not a palindrome. Why? Because if I reverse this number it becomes 243, so it is not a palindrome. So palindrome are all those number combinations that are read same as forward and same from backward. 111, this is a palindrome. 124, 421, this is also a palindrome. Okay, the 12421, this is also a palindrome. So all the combinations of number that are similar from forward and also similar after reversing is the palindrome number. ठीक है, तो इसको अभी कैसे बनाएंगे? What we have to do, we have to first reverse the number. ठीक है, for example let's take this example 121. तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा? We have to separate each and every digit. ठीक है, this is the number 121. We have to reverse it. So how we will reverse it? पहले ये लेते हैं 123. It will be easy. What we can do, we can take out modulus of this number 123 modulus 10. ठीक है, so if I take out modulus of any number by 10, I will get the last digit, right? 123 modulus 10 will be 3, right? So we will get the last digit. And now in the next step, what we will do, we will divide this number by 10. Okay, this is step 1. Step 1, first find the modulus. ठीक है, what is step 2? Step 2 is divide this number by 10. इसको डिवाइड करने से क्या आएगा? 12.3, but these both are integer, so we will get 12. Now again what we will do, now again we will repeat step 1. repeat step 1. ठीक है, step 1 को वापस रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, रिमाइंडर 2 मिल जाएगा. फिर 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1. फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो मॉड्यूलस क्या आएगा? 1. तो इस तरह से ये पूरा रिवर्स हो जाएगा नंबर. ठीक है, दिस इज द एल्गोरिथम. अभी इसको आप लोग ड्राई रन करके देखना, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो इसका प्रोग्राम लिखते हैं, अभी कैसे लिखेंगे. We will take some variables, we'll create some variables like n. n will be the number which is storing user input. ठीक है, एंड एक बनाएंगे r, एक बनाएंगे sum. सम को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और एक टेंथ वेरिएबल बनाएंगे. इन वेरिएबल्स में हो जाएगा एंटर द नंबर. we will take user input inside n, address of m. तो n में क्या गया? वो नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट था 123, so 123 goes inside n. And now what we'll do, we will store this number inside a variable called temp. ये temp में हम लोग n की वैल्यू क्यों स्टोर करा रहे हैं? क्योंकि हम लोग n को अभी रिवर्स करने वाले हैं, और रिवर्स करने के बाद चेक करेंगे कि temp के साथ वैल्यू मैच हो रही कि नहीं. If n and temp value are matching, then it is a palindrome, and if n and temp values are not matching, then it is not a palindrome. ठीक है, तो temp के अंदर कॉपी कर लिए किसका डेटा? n का डेटा. ठीक है, तो यहाँ temp के अंदर भी क्या आ जाएगा? 123 आ जाएगा temp के अंदर भी.
अब क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल n इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है r, इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, n मॉड्यूलस 10। जो स्टेप 1 में मैंने दिखाया, मॉड्यूलस करने से लास्ट डिजिट निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो r में क्या आ गया, लास्ट डिजिट आ गया। अब एक वेरिएबल है सम। सम में हम लोग कर देंगे सम इंटू 10 प्लस r, और n को n डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, तो भी ये पूरा कोड देखो क्या हो रहा है, इसको ड्राई रन करके मैं दिखाता हूँ। इफ 10 इज इक्वल टू सम, palindrome, else not a palindrome। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो टेम्प के अंदर कॉपी करा दे रहे हैं n की वैल्यू। ठीक है, अब n को रिवर्स कर दे रहे हैं। n को रिवर्स करने के बाद जो रिवर्स वैल्यू है वो सम में स्टोर होगी। And then we are comparing if temp is equal to sum or not. If temp is equal to sum, then it is a palindrome, or else it's not a palindrome। अच्छा, अब ये कोड कैसे काम कर रहा है, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। लेट्स ड्राई रन दिस कोड। ये अच्छा एक्सेल में लगेगा, अच्छा नहीं, पावर पॉइंट ही है। पावर पॉइंट इज वन ऑफ माई फेवरेट। वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, क्या क्या वेरिएबल है, एक है n। ठीक है, ठीक है r, और वेरिएबल क्या है, सम। और एक क्या है, टेम्प। अच्छा, टेम्प में तो पता ही है सबको क्या है, फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, दीज आर दी वेरिएबल्स। कोड क्या है, कोड ये है, दिस इज द कोड। ठीक है, तो सबसे पहले n के अंदर क्या है, n कंटेन 0। ओके, तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सम इज इनिशियलाइज्ड बाय 0। ओके, और n के अंदर क्या है, जो यूजर इनपुट है, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट था 123। ठीक है, तो सबसे पहले r के अंदर क्या गया होगा, व्हाट इज r, n मॉड्यूलस 10। व्हाट इज n मॉड्यूलस 10, n मॉड्यूलस 10 विल बी 3। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप, सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r। तो अब सम में क्या जाएगा, सम में पहले क्या है, 0, तो 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 प्लस r। r कितना है, 3, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या गया, 3। उसके बाद थर्ड लाइन क्या है, n इज इक्वल टू n बाई 10। तो n क्या है, 123। 123 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 12।
तो 12 में चल जाएगा। अच्छा, टेम्प में 123 स्टोर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, वो लूप के पहले ही हमने करवा दिया, इसको अलग ही रखो। अब n के अंदर क्या हो गया 12। ओके, अब वापस से लूप आएगा, देखेगा n इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, तो वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर आने के बाद क्या है, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। व्हाट इज n मॉडुलस 10? n मॉडुलस 10 12 मॉडुलस 10, व्हाट इज दिस 2। तो r के अंदर अब क्या स्टोर हो जाएगा 2। ठीक, अब सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r। व्हाट इज सम? सम इज 3, 3 इंटू 10 इज व्हाट 30, एंड 30 प्लस 2 इज 32। इसके अंदर क्या आ गया 32 सम के अंदर। अगेन n इज इक्वल टू n बाई 10, तो अब 12 बाई 10 क्या होगा, 1.2 तो नहीं हो सकता, तो 1 ही होगा, बिकॉज इट्स एन इंटीजर, 1 होगा। नाउ अगेन we will go back to the condition, we'll check 1 is greater than 0 or not. Yes, 1 is greater than 0, then again we will enter the while loop. Now again we will do 1 modulus 10. What is 1 modulus 10? 1. Okay, 1 modulus 10 is 1, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1। And now sum is equal to sum into 10 plus r. What is sum? Sum is 32, and 32 into 10 is 320, 320 plus 1, 320 plus 1 कितना होता है 321, तो सम में क्या हो गया 321। नाउ अगेन n is equal to n by 10, so what is 1 divided by 10? 0.1, और इंटीजर है तो 0.1 नहीं 0 स्टोर होगा। नाउ n is equal to 0, now again we will go back to the condition. Now we'll check, is 0 greater than 0? No, it is false, so we will come out of the loop। तो लूप के जब हम लोग बाहर निकल गए, तो सम के अंदर क्या है, सम के अंदर रिवर्स्ड नंबर है ना। ये देखो टेम्प के अंदर क्या था 123, एंड सम के अंदर क्या है 321, so we can see that this number is exactly reversed। तो चेक हम लोग कर रहे हैं, if sum is equal to reversed, मतलब if sum is equal to temp, ठीक है। if sum is equal to temp, then it is a palindrome, and if sum is not equal to temp, then it is not a palindrome। तो ये सिंपल सा कोड था। तो जैसे मैंने यहाँ ड्राई रन किया है, you guys also do like this in pen and copy। This is palindrome number। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटर नंबर 546, sorry 556, it is not a palindrome, not a palindrome। and if I write 121, ये देखो palindrome। okay,